Morning to all. As you all know, we are doing chapter 4 of business studies, that is planning. Planning is the first function of management. In this chapter, you are going to see what do you mean by planning, that is meaning of planning, its features, importance of planning, limitations of planning, steps in the process of planning, and various types of plan. So after going through this chapter, you will be able to understand the importance of planning in the business organization as well as non-business organization. This chapter will help you to understand the meaning of planning, why planning is important, what all are the characteristics of planning, then what are the importance of planning, then you will be able to understand what are the limitations of planning, as well as you will understand the steps in the process of planning, and after that we will see certain plans which are used in the business organization as well as non-business organization. So let us start. We have completed 2 topics of this chapter. First one is the meaning of planning. You know that we had seen the meaning of planning. So let us have a quick revision. Planning is setting objective for a given time period, formulating or identifying various course of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from among the various course of action available. So the meaning of planning states that planning is setting objective. The first important feature of planning that it is goal oriented. Planning starts with setting objective, then we identify various course of action. You know that there are various actions which you have to take, there are various steps which you have to take to complete a task, and this action is decided in the course of planning. And after selecting or formulating or identifying various course of action, you select the best possible alternative from among the various course of action available. After this, you had seen features of planning. Now, in our yesterday's video, we had seen the various features of planning. The first feature of planning was planning focuses on achieving objective. It means planning is always done to achieve a goal. If there is no goal, there is no use of planning. बिकॉज प्लानिंग इज़ डन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. जब तक हमारा कोई गोल नहीं है हम प्लानिंग नहीं कर सकते, बिकॉज प्लानिंग हमेशा एक गोल को अचीव करने के लिए की जाती है. जब हम अपना गोल सेट कर लेते कि हमें यहाँ पे पहुँचना है, यानी सपोज वी हैव टू अचीव गुड मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, दैट इज़ आवर गोल. To achieve that goal we are going to do planning. But if you are not having any goal, then for what purpose you are going to do plan? That's why planning का पहला characteristics है, it focuses on achieving objective. It means first you should have certain objective. After that, planning is a primary function of management. It means whatever function a manager has to carry out, the first function will always be planning. यानी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि एक मैनेजर को 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करने होते हैं, जिसमें कि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है और बाकी सारे फंक्शंस दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्लानिंग के बाद आते हैं. देन प्लानिंग इज़ परवेसिव. इट मीन्स इट इज़ यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स it is everywhere. Planning is everywhere in every field, that is whether it is a business organization or whether it is a non-business organization. It is at every level. Each and every individual have to do planning in his
इफ़ ही हैव सर्टेन गोल, यानी अगर किसी पर्सन के कोई गोल है तो उसे प्लानिंग करना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, you all are in class 12th, so you should have a goal, and to achieve that goal your planning should be perfect. Right from the beginning you should plan properly. After that, planning is continuous. It means you have to change your plan with the change in the situation. That's why एक बार प्लान करके आप बैठ नहीं सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने क्लास 11th में अपने 12th से रिलेटेड प्लानिंग की थी कि मुझे 12th में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं और इसके लिए मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ूँगा, एक प्रोसीजर आपने सेट किया होगा कि ये मुझे गोल अचीव करना है और इसके लिए मैं इस डायरेक्शन में पढ़ूँगा या इस तरीके से पढ़ूँगा, क्योंकि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं प्लानिंग में. बट देर आर सर्टेन अनसर्टेनिटीज़. क्या किसी ने सोचा था कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, क्लासेस नहीं होगी हमारी? ये हमने नहीं सोचा था. दिस इज़ दी अनसर्टेनिटी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आती है. और अब इसी अनसर्टेनिटीज़ के वजह से यू हैव टू चेंज योर प्लान. दैट्स वाई एक बार प्लान करके हम नहीं बैठ सकते. वो प्लानिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सिचुएशन में एक ही प्लान काम नहीं कर सकता. एंड दैट्स वाई वन ऑफ द फीचर ऑफ द प्लानिंग इज़ दैट इट इज़ कंटिन्यूस. देन प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है. जो बीत गया यानी पास्ट के लिए आप प्लानिंग नहीं कर सकते. प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एक्टिविटी. एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. एज यू नो, प्लानिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं किसी भी एक चीज़ को करने के लिए. एंड वेन एवर यू हैव अल्टरनेटिव यू हैव टू डिसाइड. जब भी आपके पास अल्टरनेटिव्स होंगे तो आपको डिसाइड करना होता है. एंड दैट्स वाई प्लानिंग में आपके पास अल्टरनेटिव होते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल बेस्ट सूट योर रिक्वायरमेंट्स एंड with the help of which you can achieve your goal effectively and efficiently. Then planning is a mental exercise because planning में आपको डिसीजन लेना होता है और डिसीजन हम अपने दिमाग से लेते हैं. और प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए आपको प्रॉपरली अपने ब्रेन का यूज़ करना होता है. दैट्स वाई प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. ये फीचर्स हम देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ I hope features of planning are clear to you all. Now let us start with the next topic of this chapter, that is importance of planning. अब हमने प्लानिंग का मीनिंग देख लिया, उसके फीचर्स देख लिए. अब ये प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? तो लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग वन बाय वन. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. When we were seeing the features of planning, we had seen that there are various course of action or various alternatives available with us, and planning help us to select the best alternative. और जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता होता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, suppose a business organization have to produce certain goods, and for producing that goods it has various alternative. Either it can produce with the help of small machines, either it can produce it with the help of bigger plants or bigger machines, or either it can produce it with the help of manpower. तो ये 3 डायरेक्शन अवेलेबल है. प्लानिंग आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, जिससे कि आप अपना गोल इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे. तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. आफ्टर दैट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. Whenever a manager plan for the future, he consider all the factors, that is external as well as internal factor. An external factor consists of business environment. हमने चैप्टर 3 में देखा है
कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है। और जब आप इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो आपको फ्यूचर का कुछ ना कुछ अंदाज़ा आ जाता है कि फ्यूचर में शायद लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बिजनेस है कॉटन पैंट्स बनाने का। नाउ इफ़ यू नो द बिजनेस एनवायरनमेंट, यू नो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी आपने की है और आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि आजकल लोग सिंपल पैंट्स के जगह पे डेनिम्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यू कैन चेंज योर प्लान अकॉर्डिंगली, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस planning you can reduce the risk of uncertainties. Uncertainties are the biggest part of any business, और इस अनसर्टेनिटीज़ को reduce किया जा सकता है, fully eliminate नहीं किया जा सकता। आप अनसर्टेनिटीज़ को reduce कर सकते हो with the help of प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग में आप मेंटल एक्सरसाइज कहा जाता है प्लानिंग को, और प्लानिंग में आप पूरे एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करके एक प्रॉपर प्लान बनाते हो, और अनसर्टेनिटीज़ के लिए आप स्टैंड बाय भी प्लान को रखते हो, यानी एक दूसरा प्लान भी रेडी रखते हो, यानी अगर ये चीज़ ऐसे ना हो के इसमें कोई बदलाव आ जाएगा तो आप उस बदलाव के लिए भी रेडी रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द प्रेजेंट सिचुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19, यस, कोरोना वायरस की वजह से आजकल हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हर एक बिजनेस एंटिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। सो कैन अ प्लान विच वॉज मेड बिफोर दिस पैंडेमिक कैन हेल्प अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव? नो, इट मीन्स it will not help a business organization to survive in this condition. But अगर आपने प्लानिंग करते वक्त सारे फैक्टर्स को, यानी प्लानिंग कंटिन्यूस है, आपको कंटिन्यूसली प्लानिंग को चेंज करना है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, यस, देन अगर आपने अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को सही से स्टडी किया होगा तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ के इम्पैक्ट आपको दिखाई देने लगे होंगे ड्यूरिंग मेकिंग द प्लान, एंड दैट्स वाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सही से स्टडी किया होगा, प्लानिंग की होगी सही से, तो वो ऐसे अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस कर सकता है। वी कांट से दैट इट कैन एलिमिनेट द रिस्क, बट इट कैन रिड्यूस द रिस्क इफ his planning is properly done. After this, planning reduce overlapping and wasteful activities. Now, as you know, whenever you make any plan, you decide in advance what is to be done, when it is to be done, and who will do it. Everything is decided in advance. That's why every person in the organization knows what he have to do. That is, every department has a clear-cut goal in their mind, so the planning will reduce overlapping of work. कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक इंडिविजुअल को पता है कि उसे क्या करना है, जिससे कि हर एक पर्सन अपना दिया हुआ टास्क कंप्लीट करेगा, जिससे ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि एक ही काम दो पर्सन नहीं करेंगे। हर एक को पता है मुझे ये काम करना है, वो वही काम करेगा, जिससे कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, और ओवरलैपिंग ना होने से वेस्टेज भी नहीं होगा। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग का एक फीचर है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, एंड whenever you use your brain, certain better ideas come in your minds, and these ideas will help you to think innovatively. आप innovative ideas आपके दिमाग में आएंगे, and this will be a very important, we can say this is one of the important of planning, कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें आप अपने ब्रेन का यूज़ करोगे, एंड जिससे कि आप कुछ अच्छा सोच के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। आफ्टर दैट
Planning facilitates decision making. Planning helps the manager to take various decisions. As in planning, goals are set in advance and predictions are made for future. This prediction and goals help the manager to take fast decision. जब प्लानिंग की जाती है तो आप सारी चीज़ों को पहले से ही डिसाइड कर लेते हो. That's why whenever any manager at any level wants to decide anything, then he has a plan with him which is already selected by the management. That's why the decision making will be quick. After this, next importance of planning is planning establish standard for controlling. You have seen 5 functions of management. First function was planning and the last function of management was controlling. यानी आप प्लान करते हो और आपका काम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोलिंग के फंक्शन में देखते हो. कंट्रोल करना, कंट्रोल अगर आप किसी को करोगे किस बेसिस पे करोगे, तो इसका बेसिस होता है प्लानिंग. तो प्लानिंग सेट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. फॉर एग्जांपल, आपने प्लान बनाते वक्त, सीरियस एग्जांपल, आपने जब प्लानिंग की थी तो ये डिसाइड किया था कि या ये आपने प्लान किया था कि एक वीक में आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे. दिस वॉज योर प्लान कि एक हफ्ते में हम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे. Now the person who is supervising the employee, he will supervise the employees on the basis of this plan. अब प्लानिंग करते वक्त आपने डिसाइड कर लिया 100 यूनिट प्रोड्यूस्ड होने हैं. अब जो एम्प्लॉय का काम देखेगा वो इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे देखेगा कि क्या एक एम्प्लॉय 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. अगर वो नहीं कर रहा तो वो उन्हें मोटिवेट करेगा टू प्रोड्यूस द 100 यूनिट. अब उसको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, कैसे उसे पता लगा कि कितने यूनिट्स बनाने हैं, तो ये स्टैंडर्ड वो सेट किया गया था इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. तो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा हमारा प्लानिंग फंक्शन. दैट्स वाई प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. एंड द लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग फोकसेस attention on objective of the company. प्लानिंग करने का मेन मकसद ही हमारा होता है टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स ऑल द फोकस ऑफ द प्लानिंग विल बी टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड, इट मीन्स इट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉय. And these were the 7 importance of planning. I hope you